Good morning class 10 students. Today we are going to study another combination of resistors, that is resistor in parallel. Earlier class we had learned about resistors in series. So resistors in parallel, they are connected like this. Here I had made the circuit diagram. R1, R2, R3, this way they are connected in parallel. In series they are connected in straight line. In this they are connected in parallel like this. Only from this connection the diverted current will come from here, from battery, and this current will get distributed in the three branches I1, I2 and I3. Okay, and again the current will get combined here and it will come out from the circuit I. एमीटर में आप उस करंट को देख सकते हैं कितना करंट है. दिस इज प्लग की and then again your battery. This is a negative connection, this is positive connection. Here also you can write I1, I2, I2 and I3, these branches. I have taken 3 resistors. More than 3 resistors also can be there, or 2 resistors also can be connected in parallel. Here 1 voltmeter is connected to see the voltage in all the 3 resistors. One condition is there in parallel connection, voltage will be constant in each branch and total current will be what? I is equal to I1 plus I2 plus I3. That I told you how current get distributed, and again it will be I. From let Rp be the equivalent resistance of parallel connection of resistors by applying Ohm's law. Ohm's law apply करेंगे तो V is equal to IR. V is equal to IR means I is equal to V by Rp. This we are noted as first equation. Next, for each resistor I1 is V by R1. हर एक resistor में करंट कितना होगा? V by R1, V by R2 and V by R3. This is we are putting as second equation. Since I is equal to I1 plus I2 plus I3, हम सबसे पहले पढ़ा, तो I की जगह हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे V by Rp, और बाकी सबकी वैल्यूज़ सेकेंड इक्वेशन में से हम पुट करेंगे V by R1, V by R2, V by R3. नाउ V गेट कॉमन, इसमें से ऊपर से कॉमन आ जाएगा, so 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This V get cancel out and 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to plus 1 by R3. दिस कैन बी एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स. कितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्शन हो सकते हैं, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको इसी तरह से निकालना है. वन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. In this way you have to write this resultant. Rp is the equivalent resistance in parallel connection. Okay, on the basis of this derivation we will understand this example. एग्जाम्पल को देखिए. सब इन सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10 सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 है द वैल्यूज़. इसी तरह का रेजिस्टर है, जैसे हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, पैरेलल कनेक्शन है, उसमें 5, 10, 30 R1, R2, R3 हैं, विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया है. कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. ईच रेजिस्टर में हम करंट निकाल रहे थे. I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, इस तरह से. तो I1 V बाय R1 होगा, तो V तो 12 वोल्ट बैटरी है, R1 5 ओम है, तो इस तरह से I1, I2, I3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं. I2 इज़ V बाय R2 एंड I3 इज़ V बाय R3. तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द currents in each resistor. Next question is total current in the circuit. टोटल करंट हमें निकालना है, तो टोटल करंट का फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू V बाय Rp. V बाय Rp, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का. तो इसका, इन तीनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. दैट विल हाउ यू कैलकुलेट, लाइक दिस यू कैलकुलेट 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30. 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 बाय 5, 1 बाय 10, 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाई 3. ये कैसे आता है 1 बाई 3? सी वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द LCM ऑफ 5, 10, 30. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 6 is 30, then 2 2 3 is 6 and then 3. तो 3 2 is 6, 6 5 is 30. इसका 30 LCM आएगा. LCM 30 आता है, तो हमें इसको ऐड करना है. 5 6 is 30, 6 प्लस 10 3 is 30
प्लस 1, 6 + 3 9 + 1 10, 10/30 आएगा, 0 0 कैंसिल, सो 1/3. दिस वे दिस आंसर 1/3 इज कमिंग. 1/3 is equal to 1/RP. that shows that RP is equal to 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो RP is equal to 3 आ जाएगा. सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. यूजिंग दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं करंट. करंट का पहला वाला तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे वही यूज़ किया हुआ है, I इज़ इक्वल टू I1 + I2 + I3, क्योंकि हमने I1 I2 I3 निकाल लिए थे. उन सबको ऐड कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा. Okay, so here we calculated equivalent current, total current to equivalent resistance also, then the total circuit resistance. वही equivalent resistance जो हमने निकाला, that is the total resistance. In this way you can calculate all the resistances and current in the parallel combination of circuit. Okay, and another question also here given. इफ़ R1 इज 10 ओम, यहाँ पे सर्किट भी दिया हुआ है. R1 है, R2 40 ओम 10 ओम है, 30 ओम, R3 30 ओम है, R4 20 ओम है, R5 60 ओम है. कनेक्शन इस तरह से है, R1 और R2 पैरेलल में हैं, फिर R2 R3 R4 R5 पैरेलल में हैं, और दे आर कनेक्टेड थ्रू बैटरी इन दिस वे. ऐसे है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में होगा. So first you calculate the equivalent resistance of R1 and R2. R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 40. 1/10 + 1/40, ये भी 40 हो जाएगा तो 4. सो 4 + 1 5, 5/40. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 40/5, दैट इज़ 5 8 40. तो R डैश आ जाएगा 8 ओम. तो इस ऊपर वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम. इसी तरह से नीचे वाले का हम निकालेंगे तो नीचे वाले का आएगा 1/30 + 1/20 + 1/60. इसको निकालना उसी तरह से जैसे मैंने LCM निकाल के आपको ऊपर दिखाया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आएगा 10 ओम. नाउ टोटल रेजिस्टेंस मैंने बताया ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 8 + 10 दैट इज़ 18 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस इज़ 18 ओम. अब यहाँ पे पूछा क्या है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, तो हमने निकाल लिया. टोटल करंट है निकालना है बी पार्ट में, फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना है. करंट के लिए I इज़ इक्वल टू V/R. V 12 वोल्ट की बैटरी है, दी हुई है इसमें क्वेश्चन में 12 वोल्ट की बैटरी. R हमने निकाल लिया 18 ओम. सो V/R हम पुट करेंगे, दिस यू कैन कैलकुलेट यूजिंग कैलकुलेटर ऑल्सो, 0.67 एम्पियर. दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस. ये जो अपने ये पहला क्वेश्चन जो पढ़ा दैट इज़ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन. पहले दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, फिर रिजल्टेंट जो दोनों के हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. तो दो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, हर तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए. थैंक यू.